Namaskar. Good afternoon. We have a press release by Shri Rajnath Singh, the former president of the Bharatiya Janata Party. It would be circulated for your reference. He has taken up many issues about corruption, price rise, about the 2G scam and many other issues. You can look into that. एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां नवनियुक्त सीवीसी ने लगभग एक प्रकार से अपने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. He has rebuffed all the attempts by the government, by the emissaries, but some facts and revelations which indicate that a big lobby had worked to induct him or influence the committee to see that he is inducted. Even the name of the chief ministers, the chief secretary of Maharashtra figures there. Well, so far no one has mentioned about the former minister in the Prime Minister's Secretariat, who is now the Chief Minister of Maharashtra. It seems all is falling in place. And of course, the Prime Minister claims that he was unaware. The petition in the court, the Solicitor General, they claim that they were unaware the background of Mr. Thomas. It's most shocking, amazing. But we will not say that the Prime Minister would be lying. Of course, he can't be lying. But we have a statement right on that piece of paper in which signatures were made, appended to the selection of the CVC, in which leader of the opposition in the Lok Sabha, Mrs. Sushma Swaraj, has said, "I disagree." And she has emphatically quoted that while saying so, she had mentioned about the background of Mr. Thomas. It's very amusing that we can say that the Prime Minister cannot lie. We know that he cannot lie. But of course, he has opted under whatsoever reasons to mislead and get misled. All this establishes the culpability, the guilt of the Prime Minister and even the present Home Minister, who was then acting as a Finance Minister. The present Mr. Chidambaram as well. We do not know how much embarrassment the government would still prefer to have, whether they would like to have a sacking of the CVC from the Supreme Court, whether the government is so weak and guilty that it does not have the courage to sack the CVC in the interest of democracy, in the interest of these institutions, which are constitutional institutions. We expect, the Bharatiya Janata Party expects, the CVC should step down immediately. Failing so, the Prime Minister must gather enough courage to sack him if he is not guilty and wants to vindicate his position. इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आती हैं. जी, मैम अभी मेरा चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको खत्म कर लूँ. बहुत सारे विषय हिंदी में बोल लूँ, उसके बाद आप. सीवीसी ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीवीसी ने अपने पद को त्यागने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं इनके नियुक्ति में एक बड़े लॉबी की बात आ रही है, जिसमें महाराष्ट्र से जुड़े लोगों की बात है. कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े थे के राज्य मंत्री के रूप में, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का भी नाम आ रहा है. और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी एमिसरीज, जो भी मध्यस्थता करने के लिए लोगों ने आग्रह किया कि सीवीसी इस्तीफा दे दे, सीवीसी ने साफ इनकार कर दिया है. और यह स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो इनकी नियुक्ति में
जिनकी अहम भूमिका रही है, उनके पास इतनी ताकत नहीं, वो उनमें उतनी शक्ति नहीं, या कल्पेबल हैं, या इस नियुक्ति में उनकी भागीदारी रही है। और विशेष करके उस स्थिति में जब ये कहना कि उनके पास विवरण उपलब्ध नहीं थे, प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने स्पष्ट रूप से कहा था, जब उस संचिका पर उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ, और अपने हस्ताक्षर अपने हाथ से किया था, उस समय इन सभी विषयों को प्रधानमंत्री के नॉलेज में, उनकी जानकारी में लाया था। आज उनके सरकार के जो काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना कि उनकी जानकारी नहीं थी, ये अपने आप में प्रमुखतः उनकी कल्पेबिलिटी, उनकी भागीदारी दर्शाता है। और यदि सचमुच देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अपनी गलती को सुधारें, अपने गलती को स्वीकार करें, हम ये नहीं कहना चाहते कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं, उनकी अपनी कल्पेबिलिटी दिखती है, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी दिखती है, उनका दोष दिखता है। और जब सीवीसी हट करके अपने पद को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सरकार अभी और एम्बैरेसमेंट के लिए तैयार है। सरकार अभी चाहती है कि उच्चतम न्यायालय उनके बर्खास्तगी का आदेश करे, सरकार उस वक्त के इंतज़ार में है। और यदि देश के समक्ष देश के प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करते हैं, तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सीवीसी की सैकिंग की मांग करेगी। आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उच्चतम न्यायालय उनकी बातों से सहमत नहीं है, इसलिए सीवीसी का त्यागपत्र अविलंब मिलना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया के बारे में हम चर्चा सुनते रहते हैं, और उसकी चर्चाएं लगभग समाप्त होने लगी। लेकिन हम लोगों ने पहले भी, भारतीय जनता पार्टी ने कई विषय उठाए हैं, मैं स्वयं विषयों को लेकर आता रहा हूँ, और आज फिर सीएजी ने जो प्रतिवेदन भेजा है, जो अंश भेजा जाता है सरकार में, जो अंश भेजा जाता है प्रतिवेदन प्रकाशित करने से पहले, पार्लियामेंट में टेबल करने से पहले, जो टिप्पणियां होती है, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो संबंधित विभाग को भेजा जाता है। और सीएजी ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में ये सवाल उठाया है कि 50,000 करोड़ का जो क्रय इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों का हुआ है, उसमें कई सारे सवाल खड़े किए। और ये 2006 में ये क्रय किया गया, जिस समय इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया अलग अलग, एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, अलग अलग थे। और उस समय के क्रय में लगभग जो 68 विमान खरीदे जाने जो बोइंग कंपनी से, उसमें लगभग 48 विमान आ चुके हैं, और इंडियन एयरलाइंस के लगभग 43 विमान आने थे, वो सब आ चुके हैं। जो सवाल खड़े किए गए हैं कि उनके क्रय के पहले एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का क्या बिजनेस प्लान था, इनके यूटिलाइजेशन के बारे में क्या योजना बनाई गई थी, और इन सबको जोड़ा गया है कि आज इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मार्केट शेयर इतना गिर क्यों गया है। और आप सबको स्मरण होगा, देश के लोगों को स्मरण होगा कि जब जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की चर्चा की जाती थी, तो सरकार ने, तत्कालीन मंत्री ने पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर ये बताया कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को पुनर्जीवित करने का एक ही उपाय है, और दो उपाय सुझाए गए। एक, नए विमानों का क्रय करना, और दूसरा, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज करना। These were the two basic formulas suggested to the country, that the only way to succeed and compete in the market today, to match the growing industry, is to merge Indian Airlines. First was merge Indian Airlines and Air India, and second was we need new aircrafts. The country gave the government both. It gave them 100 aircrafts, and it allowed Indian Airlines and Air India to merge. It happened in 2007. It is 2011 now. In 4 years,
Indian Airlines, Air India collectively has slipped into the 4th position as far as the market is concerned. And the most shocking is that an airlines which has half the number of aircrafts, a private airlines which has half the number of aircrafts which Indian Airlines and Air India has today become the country's second largest carrier. चिंता का विषय है। आज वो एयरलाइन जिसके पास इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की संयुक्त फ्लीट में, बेड़े में आधे संख्या के जहाज, वो आज इस देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरलाइंस बन गया है। आज इसका मार्केट शेयर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का 18% से भी कम आ गया। हम सरकार से जानना चाहेंगे कि ये 50,000 करोड़ का क्रय, 34,000 करोड़ का डेट्स और आज 17% मात्र मार्केट शेयर, इतने बड़े व्यय के बाद इस दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है? Why has our national carrier become a 4th airline, followed by Jet, Kingfisher and Indigo has become a 4th airline in the country, having half the number of aircrafts to a particular airline which is in operations today. हम ये भी जानते हैं कि आज जो ग्रोथ है लगभग 18% का है. It is about 18. It is the growth in the aviation sector is around 18 to 19%. But Indian Airlines and Air India collectively are suffering huge losses. We'll wait for an answer from the government. We have a new minister who has claimed to set things right, but major questions have to be answered, and the Bharatiya Janata Party would come back with a fact sheet on what is happening in Indian Airlines and Air India.